Hello everyone, I hope you all are doing well. On my channel, this is the first lecture on partial differential equations. आज हम start करेंगे chapter 1 that is formation of partial differential equations. But chapter 1 start करने से पहले you need to know the basic difference between an ordinary differential equation and a partial differential equation. क्लास 12th में आपके पास एक चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशंस. इन योर फर्स्ट ईयर यू हैव डन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नाउ you are doing partial differential equation. An ordinary differential equation has only one independent variable and a partial differential equation has more than one independent variable. दोनों के केस में डिपेंडेंट वेरिएबल एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. Now if you have y equals to x square and u equals to x square plus y square. Here x is the independent variable and y is the dependent variable. And here x and y are independent variables and u is the dependent variable. अगर आपको y का डेरिवेटिव करना हो तो आप x के रिस्पेक्ट में करोगे dy अपॉन dx. बट अगर आपको u का डेरिवेटिव करना हो तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा किसके रिस्पेक्ट में करें, x के और y के. बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. Now in this situation you need partial derivatives. हम u को partially differentiate करेंगे दोनों के रिस्पेक्ट में, x के भी और y के भी. एंड partially differentiate करने के लिए we use del u upon del x and del u upon del y. अब देखते हैं definition of a partial differential equation. A differential equation involving partial derivatives of dependent variable with respect to two or more independent variables is called a partial differential equation. For example, x square del z upon del x plus y square del z upon del y equals to z square. This is an example of a partial differential equation. Now if you have x and y as independent variables and z as a dependent variable, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास आएंगे del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, del square z upon del x square would be the second order derivative, del square z upon del y square and del square z upon del x del y. सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स तीन आएंगे आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. अब आपकी बुक में स्पेसिफिकली कुछ सिंबल्स से डिनोट किया गया इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को, जैसे कि del z अपॉन del x को डिनोट किया गया है p से एंड del z अपॉन del y को डिनोट किया गया है q से, r, s एंड t. थ्रू आउट द बुक इन सिम्बल्स को यूज किया गया है, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. Now the next is order and degree of a partial differential equation. The same concept you have done in ordinary differential equations. Order is the highest order derivative occurring in the given equation and degree is the greatest exponent of the highest order partial derivative occurring in the equation after making it free from radicals and fractions as far as derivatives are concerned. इक्वेशन से रूट्स एंड फ्रैक्शंस रिमूव करने के बाद ही आपको डिग्री चेक करनी है. अब एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, सो द हाईएस्ट ऑर्डर इज 1 एंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट इज 2. तो ऑर्डर हुआ 1 एंड डिग्री हो गई 2. इन एग्जाम्पल नंबर 2 हाईएस्ट ऑर्डर इज 3 एंड द एक्सपोनेंट इज 1, सो ऑर्डर हो गया यहाँ पे 3 और डिग्री इज 1. एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रेजेंट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड दोनों का एक्सपोनेंट भी 1 है, so the order is 2 and the degree is 1. I hope you all are clear with the definition of order and degree. Next is linear differential equation and a non-linear differential equation. Now what is a linear partial differential equation? A partial differential equation is said to be linear if the dependent variable and its partial derivatives occur only in first degree and are not multiplied together. दो restrictions लगाई गई हैं dependent variable पर और उसके derivatives पर, that they must occur in first degree and they are not multiplied together. Now if you have x and y as independent variables and z as a dependent variable, according to the definition, z del z upon del x, del z upon del y, del square z upon del x square और any higher order derivative जो भी प्रेजेंट होंगे इक्वेशन में, इन सब की डिग्री 1 रहनी चाहिए इक्वेशन में. और
ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में अकर नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स इस फॉर्म में या फिर कोई भी दो प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको नहीं नज़र आने चाहिए इक्वेशन में, अदरवाइज जो इक्वेशन होगी दैट वुड बिकम नॉन लीनियर। ये अलाउड नहीं है आपको। अब एग्जाम्पल 1 में आप देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं एंड देयर एक्सपोनेंट इज ऑल्सो 1, कोई मल्टीप्लाइड फॉर्म नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Now in example number 2, partial derivative का exponent है 2, which is not allowed. So this is a non-linear equation. अगर मैं इसका exponent 1 भी कर दूँ तो भी ये non-linear equation है, because आप यहाँ पे अगर bracket को open करोगे then you will get zx minus yz del z अपॉन del y, ये प्रोडक्ट फॉर्म है यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये भी आपको अलाउड नहीं है। स्टिल इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, y से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब या तो आपको इक्वेशन गिवन होगा या कुछ कंडीशन जिससे आपको इक्वेशन क्रिएट करना होगा। हेयर इन एग्जाम्पल 1 इक्वेशन गिवन है, आपको करना है एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b को एंड फॉर्म करनी है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एलिमिनेशन के लिए तो यू नीड इक्वेशंस, सो हम क्रिएट करेंगे इक्वेशंस बाय डिफरेंशिएटिंग z पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ। अब यहाँ डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी a, बिकॉज ax का डेरिवेटिव होगा a एंड y ट्रीट होगा यहाँ पे एज अ कांस्टेंट। सो ये तीनों टर्म्स हो गई कांस्टेंट, सो वैल्यू सिर्फ किसके इक्वल आएगी a के। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू आ जाएगी b के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ आई हैव 3 इक्वेशंस, मुझे करना है एलिमिनेशन a एंड b का। इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, आप जस्ट a और b की वैल्यूज को फ्रॉम 2 एंड 3 पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z equals to x. Now this is the required partial differential equation. Now this is example 2, again equation given है, constants हैं h and k जिनको करना है eliminate। simple है, differentiate करेंगे with respect to x and y both। Next problem is find a partial differential equation by eliminating ABC from equation 1. स्टेप 1 में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं 3, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए यू वुड रिक्वायर मोर इक्वेशंस एंड उसके लिए आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को।
ओके, सो नाउ वी हैव 5 इक्वेशंस। एलिमिनेट करना है ए बी सी को। अब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी सी की वैल्यू निकालो देन इक्वेशन 1 में पुट करो तभी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिकली एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए फ्री फ्रॉम ए बी सी। इन इक्वेशंस का यूज़ आप कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 2 से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जिसमें ए बी सी प्रेजेंट नहीं होंगे। अब आपके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ यूज़ की, थर्ड और फिफ्थ भी तो यूज़ कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड और फिफ्थ को यूज़ करके यू विल गेट वन मोर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम स्टेप्स फॉलो करके आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे। Next is example number 4. Find the differential equation by eliminating the arbitrary constants lambda and a from the given equation. Here x and t are independent variables. Lambda and a are arbitrary constants जिनको करना है eliminate. So हम इसे differentiate करेंगे with respect to x and t. अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके तो लैम्डा और ए को एलिमिनेट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर देखते हैं हम इक्वेशंस को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। Now you can easily see right hand side of equation number 3 and 4 is same. So del z upon del t is equals to del square z upon del x square. Now we are at example number 5. Find the differential equation of all spheres of fixed radius having center in xy plane. अब इस प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन नहीं गिवन है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे आपको इक्वेशन क्रिएट करना है। स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस, रेडियस ले लेते हैं फिक्स्ड आर, हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, सेंटर ले लेते हैं एच के 0 बिकॉज ऑफ एक्स वाई प्लेन. So equation of all spheres will be given by x minus h square, y minus k square plus z square r square. अब यहाँ पर बच्चों r is a fixed constant because radius fix है बट सेंटर फिक्स नहीं है, तो h and k फिक्स नहीं है. h and k are arbitrary constants here जिनको हमें करना है eliminate. So करिए differentiate and get the solution. Now this is the last problem of today's lecture. Find the differential equations of the set of all right circular cones whose axes coincide with z-axis. मैंने यहाँ पे एक कॉन ड्रॉ किया है with vertex at origin and alpha as a semi-vertical angle.
Equation of this cone is given by x square plus y square equals to z square into tan square alpha. अब आप वर्टेक्स एंड एंगल को चेंज करके जितने मर्जी कॉन्स यहाँ बना सकते हो, बस कंडीशन है जेड एक्सिस की. सो वर्टेक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, C. वर्टेक्स की करेक्शन आप अपनी बुक में कर लेना. C is not mentioned there. Now equation of cone will be given by equation of cone x square plus y square equals to z minus c square into tan square alpha. Here c and alpha are the arbitrary constants. अब equation तैयार है, करिए आप differentiate and get the solution. So this was all about today's lecture. आपको करनी है exercise 1.1 cover. Next lecture में I will discuss formation of equation by the elimination of arbitrary functions mentioned